In this video, we will solve some questions on reflection by using the convex mirrors and the plane mirrors. So, first question is the focal length of a mirror, concave mirror is 30 centimeter. Find the position of object in front of mirror so that the real image is 3 times the size of object. See, the question is saying that the image is real. When the image is real, then what is magnification? Magnification is -3. 3 times, that's why it is 3, and real, so it is negative. Formula for the magnification is f upon f minus u minus 3. What is the position of object? We have to find the position of object. And what is the focal length? Focal length is 30. Focal length of concave mirror, it is in negative, so I am keeping it as -30 upon -30 minus u is equals to -3. On solving this, we will get u as -40 centimeter. Next question is, a beam of light converges towards a point O behind a convex mirror of focal length 20 centimeter. Find the nature and position of the image if point O is 10 centimeter behind the mirror and 30 centimeter behind the mirror. So, see one thing, the question is saying that a beam of light converges towards a point O behind the convex mirror, means convex mirror is like this and a beam of light is converging on a point that is behind the mirror, means light is coming like this. Or I can say that when the light will be extended, then it will meet at point O. So these type of the objects are known as the virtual objects. Or I can say that when the real object is there, then always the rays coming towards the mirror are diverging. So for the virtual object, the rays are converging, and for the real object, rays are diverging. In this case, question is saying that the rays are converging, so it will be considered as virtual object. The virtual object forms the image as real or virtual. When the cases will be reversed, generally we take real and inverted for the real objects, real images, and virtual and erect for the real images. But for virtual object, it will be real and erect, or it may be virtual and inverted. तो ये क्या हुआ, जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट लिया जाएगा तो उससे जो इमेज बनेगी वो रियल के साथ में इरेक्ट होगी और वर्चुअल के साथ में इन्वर्टेड होगी. और जब रियल ऑब्जेक्ट होगा तो रियल ऑब्जेक्ट के केस में क्या होगा, रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी या फिर वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी. हमें कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल? अगर रेज कन्वर्ज होती हुई आ रही हैं तब वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और अगर रेज डाइवर्ज होती हुई या फिर पैरेलल आ रही हैं तो वो रियल ऑब्जेक्ट है. अब ऑब्जेक्ट राइट साइड में चला गया तो इस केस में u क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. तो पहले मैं फर्स्ट केस ले रहा हूँ, इसमें u की वैल्यू क्या है, +10 सेंटीमीटर. f की वैल्यू कितनी है, +20 सेंटीमीटर. क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स है. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/v + 1/u = 1/f. 1/v प्लस u की वैल्यू 10, f की वैल्यू 20. तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -20 सेंटीमीटर. तो यहाँ से जो इमेज फॉर्म होएगी, माइनस में v नेगेटिव है, मतलब इस तरफ है, इस तरफ है, तो रियल इमेज हो रही होगी क्योंकि मिरर के पीछे नहीं गई है, तो इसको हम बोलेंगे रियल इरेक्ट इमेज फॉर्म हुई है. अब सेकंड केस, 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, मतलब o वापस से पीछे ही है, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस बार, +30, और f की वैल्यू तो +20 है ही. अब क्या करना है, वापस से फॉर्मूला लगाना है, 1/v + 1/u = 1/f. ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 30, फोकल लेंथ है 20. यहाँ से सॉल्व करेंगे तो जो v की वैल्यू है वो आएगी +60 सेंटीमीटर. अब इमेज राइट साइड में गई, राइट साइड में गई मतलब मिरर के पीछे गई, मिरर के पीछे गई मतलब कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल. तो वर्चुअल इमेज है ये. और वर्चुअल के साथ में भी मैंने बताया, जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो इमेज जब वर्चुअल होती है तो कैसी बनती है, इन्वर्टेड. तो ये वर्चुअल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होएगी यहाँ पे.
तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट को वर्चुअल ऑब्जेक्ट दे दिया जाता है, उन्हें हमें ध्यान से सॉल्व करना है। हमें देखना है कि अगर रेस कन्वर्जिंग आ रही हैं किसी भी मिरर की तरफ में तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और फाइनल आंसर लिखते टाइम रियल के साथ इरेक्ट और वर्चुअल के साथ इन्वर्टेड लगाना है। जब तक ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ हो तब तक हम जो रेगुलर 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं रियल इन्वर्टेड और वर्चुअल इरेक्ट यही लिखेंगे। Next question, a thin rod of focal length f by 3 is placed along the principal axis of a concave mirror of focal length f such that its image which is real and elongated just touches the rod. क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें एक कॉन्केव मिरर दिया हुआ है और कॉन्केव मिरर के सामने एक रॉड इस तरह से रखी हुई है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है। अलोंग का मतलब होता है इस तरह से रखा हुआ, मतलब यहाँ पे रॉड इस तरह से रखी हुई होगी, ना कि सीधे परपेंडिकुलर। तो इस थिन रॉड की जो लेंथ है वो कितनी है, f/3 लेंथ है। f/3 मतलब फोकल लेंथ का 1/3 इस थिन रॉड की लेंथ है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि जो इसकी इमेज फॉर्म होएगी वो रियल इमेज फॉर्म होएगी और उसकी रॉड को टच भी करेगी। तो रॉड को टच करने वाली इमेज तभी पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट सी पर हो। मतलब अगर मैं ये मान लूँ कि ये वाला पॉइंट सी पर है तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पोल से यहाँ तक की c रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है तो ये डिस्टेंस 2f हो जाएगी, और ये वाली डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, 2f में से f/3 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो फिर ये वाली डिस्टेंस मुझे पता चल जाएगी कि कितनी आ रही है। ठीक है। जब c पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज c पर ही फॉर्म होती है, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाएगी इस वाले पार्ट की। तो ये वाला पॉइंट आपका c है, यहाँ पे आपका कहीं f आएगा और ये वाला पॉइंट आपका p है। जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ होता है तो इमेज का फॉर्म होती है बियॉन्ड सी फॉर्म होती है, और उसकी साइज़ क्या होती है, ऑब्जेक्ट से एनलार्ज्ड, तो एनलार्ज्ड। तो इस तरह से ये आपकी इमेज आने वाली है ऑब्जेक्ट की, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, केवल मैं इस वाले को ऑब्जेक्ट मान रहा हूँ, और जब मैं इस वाले को ऑब्जेक्ट मानूंगा तो u यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, पूरी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी थी 2f, इसमें से f/3 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये वाले की डिस्टेंस आ जाएगी 2f माइनस f/3। सॉल्व करेंगे, ये आ रहा है 5f/3, मतलब ये वाली डिस्टेंस है 5f/3। फोकल लेंथ f की वैल्यू नेगेटिव आएगी, कॉन्केव मिरर है तो u अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला लगा रहे हैं, मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/f माइनस 1/u, u की वैल्यू कितनी है 5f, अपॉन वाला 3 चला गया ऊपर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/v की वैल्यू आ जाएगी 2/5f, या फिर v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5f अपॉन 2। तो ये आ गई डिस्टेंस ऑफ इमेज, मतलब इमेज की ये वाली डिस्टेंस आई है। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई है 5f/2। अब मुझे करना क्या है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है मैग्नीफिकेशन बताओ। मैग्नीफिकेशन कैसे निकालेंगे, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, माइनस डिस्टेंस पॉजिटिव होती है तो मैं माइनस और v की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, डिस्टेंस की फॉर्म में ले रहे हैं, f की वैल्यू के हिसाब से अपने आप u और v नेगेटिव और पॉजिटिव सेट हो जाएंगे। तो फाइनल इमेज कहाँ पे है, 5/2f पे, माइनस इन्हीं फर्स्ट वाली इमेज कहाँ पर थी 2f पे ही थी तो ये हो जाएगा 2f पे ही है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट की जो दूसरी वाली वैल्यू, दूसरे वाले एंड की वैल्यू हमने कितनी ली है 5/3f माइनस, ऑब्जेक्ट पहले कहाँ पे था 2f पे ही था, ऑब्जेक्ट का ये वाला एंड तो हमने 2f पे ही माना था दोनों का, ऑब्जेक्ट यहीं पे इमेज भी यहीं पे, तो ये दोनों वैल्यू तो 2f हो गई। जैसे हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं वही मेथड लगा रहा हूँ। दोनों का मॉड्यूलस ले रखा है, मॉड्यूलस इसलिए ले रखा है कि f की जो भी वैल्यू आएगी उसके हिसाब से अपने आप को ये सेट कर देंगे। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू हमारे पास में आ रही है -3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर and convex mirror of focal length 15 centimeter are placed 40 centimeter apart facing each other। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर और ये हो गया कॉन्केव मिरर। दोनों में मैंने शेडिंग इस तरह से करी है कि दोनों के शाइनिंग पार्ट एक दूसरे के सामने हैं, इस ऐसे आमने सामने है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 40 सेंटीमीटर है और दोनों की अलग अलग फोकल लेंथ भी हमें दी हुई है। ठीक है, फिर इसके बाद में अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्केव मिरर
ऑन देयर कॉमन एक्सिस बिटवीन बोथ मिरर्स। ये वाला कॉन्केव है, यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इस वाले मिरर से दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और इसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 10, मतलब फोकल लेंथ 10 है और ऑब्जेक्ट 15 पे है, तो बिटवीन एफ एंड सी वाला केस हो गया। बिटवीन एफ एंड सी वाले केस में इमेज इससे पीछे बनती है, तो इसकी वजह से जो इमेज फॉर्म होएगी वो इमेज फॉर्म होएगी यहाँ पर I1, और ये I1 इमेज इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और यहाँ पे फाइनल इमेज फॉर्म होएगी I2। अच्छा, मुझे कैसे पता लगा कि पहले इसी से रिफ्लेक्शन कराना है? ये क्वेश्चन में मेंशन होता है। देखिए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। फाइंड द फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज इफ द रिफ्लेक्शन डन बाय कॉन्केव मिरर फर्स्ट। तो पहले जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो इसकी वजह से यहाँ पे इस वाले मिरर और इस वाले ऑब्जेक्ट की वजह से जो इमेज फॉर्म होएगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अगर क्वेश्चन ये कहता है कि इससे पहले रिफ्लेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी वजह से जो इमेज बनती वो इस वाले मिरर कॉन्केव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती। ठीक है, तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट है, इससे इमेज के डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो मैं पहले कॉन्केव को सॉल्व कर रहा हूँ फॉर कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के लिए यू की वैल्यू कितनी है? -15 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ क्वेश्चन में दी हुई है कि 10 सेंटीमीटर है। साइन कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव लेते हैं। 1/v + 1/u = 1/f। v की वैल्यू हमें पता करनी है, u की वैल्यू 15 है और f की वैल्यू 10। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो जो v की वैल्यू है वो आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ये आ गई 30 सेंटीमीटर। अब अगर ये डिस्टेंस 30 है तो इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कितनी दूर हो गया? 10 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के लिए u कितना आ रहा है अब? -10 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ हमें पता है कि 15 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दी हुई है और पॉजिटिव होती है। और v निकाल लेते हैं। 1/v + 1/u = 1/f। 1/v प्लस u की वैल्यू कितनी है? -10 = 1/15। सॉल्व कर लेंगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। मतलब जो ये वाली इमेज है ये इससे +6, मतलब मिरर के अंदर ये वाली 6 सेंटीमीटर अंदर बनेगी। ये हमारा फाइनल आंसर है। Next question, a plane mirror is placed 22.5 centimeter away facing towards a concave mirror of focal length 10 centimeter। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक कॉन्केव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और इससे कुछ डिस्टेंस पे एक प्लेन मिरर रखा हुआ है और वो डिस्टेंस हमें दे रखी है कि 22.5 है। 22.5 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है। ठीक है, फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन बी प्लेस बिटवीन बोथ मिरर्स सच दैट देयर इमेजेस कोइंसाइड विथ ईच अदर। मतलब यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट रख दूँ, ये ऑब्जेक्ट है, मुझे नहीं पता कि इसकी डिस्टेंस कितनी है, मैं यहाँ से इसकी डिस्टेंस x मान लेता हूँ। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 22.5 - x हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इससे जो इमेज बने इस ऑब्जेक्ट की और इस मिरर से जो इमेज बने इस ऑब्जेक्ट की दोनों कोइंसाइड करें। तो प्लेन मिरर की वजह से जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होती है। तो यहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाएगी। अब ये वाली इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक? वही 22.5 - x। जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की है उतनी डिस्टेंस इमेज की हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसकी इमेज भी यहीं पर बने। तो कॉन्केव मिरर के लिए क्वेश्चन क्या चाह रहा है हमसे? फॉर कॉन्केव मिरर यू की वैल्यू कितनी है? ऑब्जेक्ट कितनी दूर है? -x दूर है भाई। ठीक है, इमेज कितनी दूर है? दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस। तीनों डिस्टेंसेस को ऐड कर लेते हैं जल्दी से, इसको इसको इसको। तो ये हो गया 45 - x आ रहा है। ठीक है, और लेफ्ट साइड में ही है इसलिए मैं होल पे नेगेटिव लगा रहा हूँ। और फोकल लेंथ हमें कितनी दे रखी है? इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर है तो माइनस लगेगा। मिरर फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। 1/v + 1/u = 1/f। v की वैल्यू माइनस में 45 - x प्लस u की वैल्यू -(x) और फोकल लेंथ की वैल्यू -10।
इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने होने के बाद में हमारे पास x के दो आंसर आएंगे, एक आएगा 30 सेंटीमीटर और एक आएगा 15 सेंटीमीटर। अब x की वैल्यू, ये पूरी 22.5 है, x की दो वैल्यू है, एक 30 एक 15, तो ये वाली तो नॉट पॉसिबल हो जाएगी, क्योंकि जब ये पूरा ही 22.5 है तो x 22.5 से कम होना चाहिए, इसलिए ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्क्वायर वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. Okay. The center of wire is on the axis of the mirror with its two sides normal to the axis. Find the area of the image of the wire. Fine. So the object is placed 25 centimeter away. So U is minus 25 centimeter. And focal length is 10 centimeter. F will be minus 10 by using the sign convention of the concave mirror. यहाँ पे हम मिरर फार्मूला लगा सकते हैं, जिससे हमारे पास में v आ जाएगा 1/v माइनस 1/25 इज इक्वल्स टू माइनस 1/10. तो v की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, माइनस का 50/3 सेंटीमीटर, ये v की वैल्यू आ गई. अब इसके बाद मैग्नीफिकेशन निकालना है. एरिया ऑफ द इमेज के लिए हमारे पास मैग्नीफिकेशन होना चाहिए, तो m इज इक्वल्स टू माइनस v/u माइनस v की वैल्यू कितनी है, माइनस 50/3 अपॉन u की वैल्यू कितनी है, माइनस 25. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में m की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2/3. मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता है HI/HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. कितना है ये, -2/3. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है हमें, 3 सेंटीमीटर का वायर है तो 3 हो गया. HO की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो यहाँ से HI की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 सेंटीमीटर. मतलब रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है जिसकी साइड कितनी है, 2 सेंटीमीटर है. क्वेश्चन बोल रहा है कि ये स्क्वायर वायर है और इसका हमें एरिया निकालना है. तो जब साइड 2 सेंटीमीटर हो गई तो एरिया कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. Next question, when the distance of an object from a concave mirror is decreased from 15 centimeter to 9 centimeter, मतलब पहले ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर थी, बाद में उस ऑब्जेक्ट को शिफ्ट किया गया जिससे उसकी डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर रह गई. द इमेज गेट्स मैग्नीफाइड 3 टाइम्स दैट इन फर्स्ट केस. मतलब इमेज पहले जितनी भी टाइम्स मैग्नीफाइड थी, सेकेंड केस में फर्स्ट वाले का ट्रिपल हो गई है. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ. ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो m1 की वैल्यू है वो क्या है, 3 टाइम्स ऑफ m2 ले सकता हूँ मैं यहाँ पे. तो इमेज गेट्स मैग्नीफाइड 3 टाइम्स दैट इन फर्स्ट केस. फर्स्ट केस में जितना भी मैग्नीफिकेशन था उससे ट्रिपल मैग्नीफिकेशन हो गया है. तो फर्स्ट केस में हमारे पास में फॉर्मूला लगा रहा हूँ, f/f माइनस यू, f/f माइनस यू की वैल्यू कितनी है, -15 सेंटीमीटर. 3 टाइम्स हो गया मैग्नीफिकेशन, f/f माइनस डिस्टेंस कितनी हो गई है, -9 हो गई है. इसको सॉल्व किया जाएगा, f से f कट गया तो हमारे पास में लीनियर इक्वेशन बचेगी जिसमें f की वैल्यू -6 सेंटीमीटर आ जाएगी. तो ये हो गया आंसर. Next question, two objects A and B are placed in front of a concave mirror of focal length 10 सेंटीमीटर. दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं A और B और दोनों कॉन्केव मिरर के सामने रखे हैं. साइज ऑफ ऑब्जेक्ट A इज़ 4 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट B. ठीक है, तो मैं ऐसे लिख दूँ H1 इज इक्वल्स टू 4H1 डैश. H1 मतलब मैं यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 4 टाइम्स है दूसरे वाले का. देयर इमेज साइज इज सेम. ठीक है, तो जो H2 है वो H2 डैश के बराबर है. एक ऑब्जेक्ट बिना डैश वाला है और एक ऑब्जेक्ट डैश वाला है. इसी तरह से एक इमेज डैश वाली है और एक इमेज बिना डैश वाली है. तो इमेज दोनों की सेम है. क्वेश्चन ये कह रहा है कि फोकल लेंथ है 10. ठीक है, तो मैं पहले मैग्नीफिकेशन निकाल लेता हूँ फॉर ऑब्जेक्ट A. ऑब्जेक्ट ए का मैग्नीफिकेशन निकाल रहा हूँ m, जिसकी वैल्यू H2/H1 होएगी बिना डैश वाले के केस में. तो f/f माइनस u1 और a की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 50. तो ये हो जाएगा -10/-10 प्लस 50. ठीक है, अब फॉर ऑब्जेक्ट 2,
सॉरी, ऑब्जेक्ट क्या है, बी, फॉर ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट बी के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, जो मैग्निफिकेशन है वो डैश वाला होगा, तो एच टू डैश अपॉन एच वन डैश की जो वैल्यू है वो एफ अपॉन एफ माइनस यू टू लगाना है। फोकल लेंथ तो सेम है और यू टू हमें दिया नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एच टू अपॉन एच वन है और एच टू डैश अपॉन एच वन डैश है, इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ। मतलब एच टू अपॉन एच वन को मैं डिवाइड कर रहा हूँ एच टू डैश अपॉन एच वन डैश से। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा -10/40, तो मतलब -1/4 बचेगा और उसको मुझे डिवाइड करना है -10 अपॉन -10 माइनस यू टू से। डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इस भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, h1 और h2 की दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास में केवल एक ही वेरिएबल बचेगा u2, और u2 की वैल्यू आ जाएगी -20 सेंटीमीटर। तो ये हमारे सेकंड ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल, इस वाले डिवाइड को भी मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये भी रेसिप्रोकल। h1 और h2 की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन कॉन्केव मिरर इज कट इन मिडल एंड देन सेपरेटेड एज शोन इन द फिगर। एक कॉन्केव मिरर है, उसको बीच में से काटा गया है और उसको 10 mm की डिस्टेंस, 10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया है। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द इमेजेस। जो ऑब्जेक्ट है वो इसके एग्जैक्टली मिड पॉइंट यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस पे ही रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर दूर। पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में शो किया हुआ है। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 20 सेंटीमीटर। मिरर की फोकल लेंथ भी दे रखी है कि 20 सेंटीमीटर है। हमें बताना है फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द इमेजेस। इसकी दो इमेजेस फॉर्म होंगी, एक इस वाले मिरर की वजह से, एक इस वाले मिरर की वजह से। उन दोनों के बीच में कितना गैप आएगा वो हमें बताना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ अपॉन एफ माइनस यू। यही वाला फॉर्मूला मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पहले से पता है। फोकल लेंथ मुझे क्वेश्चन में दी हुई है कि 20 सेंटीमीटर है, कॉन्केव मिरर है तो -20 लूँगा। तो -20 माइनस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 30 है, माइनस में लिया जाता है यू को हमेशा। तो यहाँ से सॉल्व करके मेरे पास में इसकी वैल्यू -2 आ गई, मैग्निफिकेशन आ गया -2, ठीक है। अब दो मिरर को अलग अलग कर लेते हैं, एक मिरर ये, एक मिरर ये। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले मिरर को सॉल्व कर रहा हूँ। ऊपर वाले मिरर को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि ये मिरर है मेरे पास, केवल ऊपर वाला मिरर, और जो ऑब्जेक्ट है वो इसको जो लाइन टच करेगी उससे 10 mm ये पूरा है तो 5 mm नीचे है, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये ऑब्जेक्ट है, और जो ये वाली डिस्टेंस है ये 5 mm या फिर मैं कह सकता हूँ 0.5 सेंटीमीटर ये वाली डिस्टेंस है। अब अगर ये वाली डिस्टेंस 0.5 सेंटीमीटर है तो मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 0.5 सेंटीमीटर हो गया नेगेटिव में, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया माइनस में 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एच आई अपॉन एच ओ। मैग्निफिकेशन क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है कि -2 है। एच आई की वैल्यू मुझे नहीं पता, एच ओ की वैल्यू मुझे पता है कि माइनस में 0.5 है। जब मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर। पॉजिटिव में आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है, मतलब अगर इमेज की हाइट पॉजिटिव आती है तो हम कहते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर इमेज फॉर्म होगी, तो 1 सेंटीमीटर ऊपर इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ से ये इमेज फॉर्म हो गई और ये इमेज मैंने लिख दिया कि ये है इमेज, और इसकी जो हाइट है वो है 1 सेंटीमीटर। और अगर मैं इस वाले में इसको डिनोट करना चाहता हूँ तो ऑब्जेक्ट की जो ये वाली लाइन जाएगी इससे 1 सेंटीमीटर ऊपर, मतलब यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, ये वाली हाइट 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब सेकंड केस ले रहा हूँ मैं इस वाले मिरर के लिए। जब प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे इस तरह से है, ये मिरर है, बचा हुआ हाफ पार्ट, और जो इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे मैंने लाइन खींची हुई है, और इससे जो ऑब्जेक्ट है इसके टॉप मोस्ट पॉइंट, मतलब यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है वो वापस से 1 सेंटीमीटर, 10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर का हाफ, मतलब ये यहाँ पे है इस तरह से ऑब्जेक्ट इस बार, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो वापस से जैसे इसमें 0.5 सेंटीमीटर हुई थी, यहाँ पे भी 0.5 सेंटीमीटर है। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म हो गया।
तो ऑब्जेक्ट की हाइट अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ तो इस बार मैं पॉजिटिव में लिखूँगा कि ऑब्जेक्ट की हाइट 0.5 सेंटीमीटर पॉजिटिव में है। और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला वापस से लगा रहा हूँ, HI/HO, मैग्नीफिकेशन -2, हाइट ऑफ इमेज कितनी है मुझे नहीं पता, तो HI लिख दिया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 0.5, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई -1 सेंटीमीटर, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे 1 सेंटीमीटर, तो इससे नीचे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है और यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है I। अब ऑब्जेक्ट से इस वाले इमेज, ये अगर मैं I1 लिख दूँ, इसको मैं I2 लिख दूँ, तो I1 की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से कितनी है 1 और 0.5, मतलब ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई है, ये हो गई 1.5 सेंटीमीटर। इसी तरह से ऑब्जेक्ट और I2 इमेज के बीच में भी 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो ये ऑब्जेक्ट और यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर नीचे एक और इमेज फॉर्म हुई जो कि है I2। तो डिस्टेंस बिटवीन I1 एंड I2, डिस्टेंस बिटवीन I1 एंड I2 1.5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द इमेजेस, 2 पॉइंट इमेजेस बनी और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आ रही है वो आ रही है 3 सेंटीमीटर। Our next question is, find the distance between an object and its doubly magnified image by a concave mirror। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कॉन्केव मिरर दिया हुआ है और हमें ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस बतानी है, और एक इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है कि डबली मैग्नीफाइड इमेज है, मतलब m की वैल्यू 2 है। अब रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो हमें दोनों केस लेने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं m = +2 ले रहा हूँ, जिसका मतलब ये है कि मैंने इमेज को वर्चुअल इरेक्ट माना है, तो m = +2 मैं कंसिडर कर रहा हूँ। अब जब मैंने m = +2 कंसिडर किया है तब फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, m = f/f-u। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 2 है, f/f-u। यहाँ से जब मैं सॉल्व करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो मेरे पास u की वैल्यू आ रही है f/2, और u की वैल्यू f/2 है। ठीक है, अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला मिरर के लिए होता है -v/u = वैल्यू, m की वैल्यू दे रखी है 2। जब मैं यहाँ पे u की वैल्यू f/2 पुट करूँगा, तो यहाँ पे पुट किया मैंने f/2 = 2, तो यहाँ से v की वैल्यू मेरे पास में आ गई -f। मतलब जो इमेज फॉर्म हो रही है कॉन्केव मिरर से, उसकी डिस्टेंस, ये कॉन्केव मिरर है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस f/2 है, तो फोकल लेंथ जितनी भी रही हो, यहाँ पे फोकल लेंथ, यहाँ पे फोकस होगा, तो जो फोकल लेंथ है वो f/2 जब मैं करूँगा तो जो भी वैल्यू आएगी उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ आ गया। अब f नेगेटिव होगा क्योंकि कॉन्केव मिरर है, तो f नेगेटिव होता है, तो u भी नेगेटिव है। जब नेगेटिव f की वैल्यू यहाँ पुट की जाएगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो v जो है वो पॉजिटिव बन रहा है, तो इमेज पॉजिटिव बन रही है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज यहाँ फॉर्म होएगी। अब जो वैल्यूज़ आई हैं उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि ये वाली जो डिस्टेंस है u की डिस्टेंस, ये तो है f/2, और जो ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है f, और ये है f/2। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की टोटल डिस्टेंस है वो 3f/2 यहाँ से निकल करके आ रही है। ठीक है, अब सेकंड केस भी ले लेते हैं। पहले तो ये वर्चुअल इरेक्ट इमेज के लिए लिया था, अब अगर रियल इन्वर्टेड इमेज होती तो क्या होता, m की वैल्यू -2 आती, फिर वापस से मैं फॉर्मूला लगाता -2 = f/f-u। इसको सॉल्व करने पर मेरे पास u की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं इसको सॉल्व करूँगा तो u की वैल्यू 3f/2 आ जाएगी। फिर वापस से m के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा, m = -v/u, और m की वैल्यू -2 पुट करूँगा तो -v/u की वैल्यू 3f/2 = -2। सॉल्व करने पे मेरे पास यहाँ से v की वैल्यू 3f/2 आ रही है। मतलब अगर ये कॉन्केव मिरर है तो यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे 2f होगा कहीं पे, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 3f/2 है, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, f से ज़्यादा लेकिन 2f से कम, क्योंकि 1.5f के आसपास है। और जब u की वैल्यू आई है 3f/2, तो v की वैल्यू यहाँ से 3f आएगी, सॉरी 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो v की वैल्यू यहाँ से 3f आएगी। तो जो इमेज है वो 2f से पीछे बनेगी 3f, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 3f,
और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 3f/2। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन ये पूछ रहा था डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो इन दोनों के बीच की मुझे डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो 3f माइनस 3f/2, 3f माइनस 3f/2 इज इक्वल्स टू 3f/2, ये आ जाएगी डिस्टेंस। पहले वाले केस में भी डिस्टेंस यही आई थी हमारे पास में 3f/2, और अभी भी डिस्टेंस यही आ रही है 3f/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ए इज बी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास में एक कॉन्वेक्स मिरर है, सॉरी ये हमारे पास में कॉन्वेक्स मिरर है, ये मैंने कॉन्वेक्स मिरर बना दिया, और इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है? ए दे रखा है। तो यहाँ पे मैं इसका सी मार्क कर देता हूँ, ये एफ मार्क कर देता हूँ। तो फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्वेश्चन में ए दी हुई है, और ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बी। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है और इसकी डिस्टेंस यहाँ पे बी दी हुई है फोकस से, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बी दी हुई है। अगर ये पूरा ए है और हम जानते हैं कि जो फोकस होता है मिड पॉइंट पे होता है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? a/2 होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट से लेकर के मिरर तक की जो डिस्टेंस होगी वो b में से a/2 सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगी। तो ये डिस्टेंस आएगी b माइनस a/2, मतलब जो u की वैल्यू आने वाली है वो आएगी b माइनस a/2, या फिर मैं कह सकता हूँ 2b माइनस a/2। इसी तरह से जो इमेज फॉर्म होएगी वो हमें बताना है कहाँ पे फॉर्म होएगी, और फोकल लेंथ क्वेश्चन में जो दी हुई है वो a/2 दी हुई है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर पूरा ही a दिया हुआ है। अगर मैं इसको मिरर फार्मूला लगाता हूँ 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। v की वैल्यू मुझे निकालनी है, u की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ ये वाली, नेगेटिव में होगी पूरी वैल्यू, ये पूरी डिस्टेंस नेगेटिव में लेनी है क्योंकि ये इसके लेफ्ट साइड में है। तो -1 अपॉन ये वाले डिस्टेंस 2b माइनस a/2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकस a/2, ये इसकी फोकल लेंथ होगी, और ये राइट साइड में है इसलिए पॉजिटिव में ही होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास v की वैल्यू आएगी 2b माइनस a मल्टीप्लाइड बाई a/4b, ये है डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज ये यहाँ पे फॉर्म होती है इमेज कॉन्वेक्स मिरर के केस में बिटवीन f एंड p, लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द फोकस, मतलब मुझे इससे डिस्टेंस निकालनी है, और ये वाली डिस्टेंस मुझे पता चल गई है, ये वाली डिस्टेंस है ये, और इससे डिस्टेंस निकालनी है। तो पूरी डिस्टेंस a/2 में से मैं इसको माइनस कर दूंगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? a/2 डिस्टेंस में से इस पूरे को माइनस कर देंगे, 2b माइनस a मल्टीप्लाइड बाई a/4b। एलसीएम लेकर के अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा a²/4b। तो ये डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द फोकस। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज फोकस से दी हुई हो, इसमें फोकस से दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फोकस से निकालनी है, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी फोकस से निकालना है, फ्रॉम द फोकस। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है xy इज इक्वल्स टू f², जिसमें x क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस, y है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम फोकस, और f है फोकल लेंथ का स्क्वायर। ये तो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस से। इसी तरह से ये y है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम फोकस और इज इक्वल टू f²। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला इसमें डायरेक्ट लगा दूंगा तो फिर मेरे पास में तब भी आंसर आ जाएगा, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस थी b, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम फोकस मतलब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, और फोकल लेंथ दे रखी थी a/2 और इसका स्क्वायर, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी a²/4b, और हमारा आंसर भी a²/4b ही आ रहा है। तो आप या तो डायरेक्ट ट्रिक लगा सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। सीबीएसई में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम जनरली ये वाला मेथड लेके चलते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट ट्रिक लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रेज ए बी एंड सी डी आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आर एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली फ्रॉम इट। ये ए बी एक पैरेलल रे है प्रिंसिपल एक्सिस की और ये इससे 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। इसी तरह से सी डी भी एक पैरेलल रे है प्रिंसिपल एक्सिस की और ये 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। पैरेलल आने वाली रे फोकस से पास होती है, ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों रेस फोकस से पास होंगी।
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एट विच दीज रेज इंटरसेक्ट एट प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये वाली रे यहाँ से पास हुई, ये वाली रे क्या सच में यहाँ से पास होगी या कहीं और से पास होगी। तो ये बात डिपेंड करती है रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर जनरली मीटर्स में हो या 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है तो फिर हम ये मान लेते हैं कि ये फोकस से जो इसकी डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा कम होगी। लेकिन इस केस में हमें दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर सिर्फ 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये वाली रे यहाँ से पास हुई तो जो सेकंड रे पास होगी ये एग्जैक्टली इस पॉइंट से पास नहीं होकर के कहीं और से पास होगी। हमें उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन CBSE में नहीं आते हैं, किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में हो सकता है आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले। तो जो पोल से डिस्टेंस होगी उस पॉइंट की, इस पॉइंट की डिस्टेंस को मैं x मान रहा हूँ। तो पोल से जो डिस्टेंस होती है उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है वो हमें ध्यान रखना है कि r² अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ r² माइनस h²। ये है डिस्टेंस फ्रॉम द पोल जहाँ से ये वाली रे स्ट्राइक करेगी। तो फर्स्ट केस में जब AB को मैं ले रहा हूँ तो 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 5 का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ 5 स्क्वायर माइनस डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी है 3 का स्क्वायर। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास में आ जाएगा 25/8 सेंटीमीटर। इसी तरह से जब मैं x2 निकालूंगा तो वापस से सेम फार्मूला लगाऊंगा, 5 का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ 5 स्क्वायर माइनस, अब की बार डिस्टेंस 4 है तो 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके मेरे पास आ रहा है 25/6 सेंटीमीटर। अब एक पॉइंट आ गया 25/8 पे और दूसरा पॉइंट आ गया 25/6 पे। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हो जाएगा 25/6 क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है, माइनस 25/8। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ रहा है 25/24। डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 25/24 सेंटीमीटर। तो ये उस पॉइंट डी की डिस्टेंस है जो कि ये वाली रे जहाँ स्ट्राइक करेगी और ये वाली रे जहाँ स्ट्राइक करेगी उन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ y एंड x डिनोट्स द डिस्टेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम द फोकस। y और x ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंसेस हैं फोकस से of a concave mirror and a line y is equals to 4x cuts the graph at a point whose abscissa is 20 सेंटीमीटर। तो y is equals to 4x जो लाइन है ये ओरिजिन से पास होगी क्योंकि 0,0 को सेटिस्फाई करेगी। तो मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे पास कर देता हूँ और इस पर लिख देता हूँ कि ये y is equals to 4x की लाइन है। जहाँ पे ये स्ट्राइक कर रही है वहाँ पे x का कोऑर्डिनेट 20 सेंटीमीटर है क्वेश्चन के हिसाब से। अच्छा, जब ये y इज इक्वल टू 4x से पास हो रही है, x की वैल्यू जब मैं यहाँ पे 20 पुट कर दूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 × 20 इज इक्वल्स टू 80। तो ये 20,80 ये वाला पॉइंट हो गया जहाँ से ये पास हो रही है। अब अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन्स में देखा था कि अगर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज हमें फोकस से दिया हुआ हो, फ्रॉम फोकस, तो फिर डायरेक्ट फार्मूला होता है हमारे पास xy इज इक्वल्स टू f², जिसमें x डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है फ्रॉम फोकस और y डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम फोकस। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस 20 और 80, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 80 इज इक्वल्स टू f²। सॉल्व करेंगे, f² की वैल्यू आ गई 1600 और f की वैल्यू यहाँ से हमारे पास में आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट आ गया कि फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर होगी। आप इसको पहले वाले लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं जिसमें पहले वाले क्वेश्चंस में मैंने इसमें वैल्यूज़ लेकर के आपको बताया था। थैंक यू।